So the first question, first term is coming as 1 only, second term is coming as, right, the addition of these three will be 2 only, the third term, right, the sum of all the term is coming as 3 only, then 4 only. For the last one, this is n only. The sum of 1 plus 2 plus 3 up to n will be n plus 1 by 2. Right. So how many of you got correct? Write down yes in chat. वाह वाह वाह. अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू पूछ लेते तो ज्यादा आसान हो जाता है एक्चुअली. हाँ. जनरलाइज पूछ लेते. राइट. हाँ, मैक्सिमम ये कहाँ तक जाता है? 2024 तक जाता है, राइट. सर मैक्सिमम. 2025 26 तक करवा देते ज्यादा. हाँ, तो 2024 तक जाता, वेयर यू हैव टू सी कि एग्जैक्टली हाउ दिस इज वर्किंग, राइट. सर सेकंड का 5049 है ना. हाँ, राइट. So second one, so this let S be the sum, right? S be the sum of this, right? So if you'll see na ki the nth term of this, so this is 1 2 3 4, this is coming as, right, n upon, right, first term is 1 plus 2, second term is, right, so 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1, and second is 1 plus 2 plus 3 up to n, right? So if I'll write this, So we can do summation of n divided by n into. if I'll We write can do this, n so into this is plus 1 coming plus as, 1 by 2. right, this is coming as n upon n into n minus 1 by 2 into n into n plus 1 by 2, right? 2 to 4 and n cancel out, 4 upon n n minus 1 n plus 1. याद है ना टेलीस्कोपिक? इसका टेलीस्कोपिक के लिए मैंने क्या बोला था, राइट? फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने माइनस किया तो केवल ये 2 बच गया. 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, यही टेलीस्कोपिक बचा, राइट. इसकी भी टेलीस्कोपिक हो जाएगी, नहीं? इसकी टेलीस्कोपिक क्या बनेगी? 1 अपॉन n माइनस 1 1 बाई n, एंड दिस इज 1 अपॉन n माइनस 1 बाई n प्लस 1, राइट. यही ना? हाँ सर. right, 2 times of this, so everything is cancelling out. ये ठीक है ना सबको? यस सर. फिर उसमें आ जाएगा फ्रैक्शन 1 by 5050, तो 5050 minus 1 is 5049. यहाँ लिख, राइट. सो आंसर जो मेरे पास आ रहा है, सो ऑब्वियसली 1 माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1 by 2 and last term is 1 by 10 0 0. So this is coming as 1 upon 50 50, 1 minus this 1 1 cancel out, so this is 1 upon 50 50, something like this. So what we have to So find it is 1 minus 5049 by 5050. so we have to find out 5049, this difference between these two. Yes sir. डिफरेंस मतलब बड़े से छोटे को माइनस कर दिया. थर्ड वन तो कई बार मैंने करवाया है इस तरह के. पिछले टेस्ट में भी वो सिमिलर ही आया था. एकदम, ये तो जितना कोशिश करूंगा मैं बार बार देख के दिमाग में आपके फिट कर दूं कि भाई 1275 by 2551. राइट. ऐसे जितने 1275 by 25. आपको उतना आसान रहेगा, याद रखना उतना सिंपल रहेगा. सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर था? फर्स्ट का आंसर बेटा n n plus 1 फर्स्ट का आंसर n, सेकंड का है 5049. 49, right? Now coming into the third one, right? थर्ड वन, सोफी जर्मन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोफी जर्मन. क्या बोलते हो? नहीं? तो अगर मैं इसके टी आर एट टर्म या टी एन एट टर्म लिख रहा हूं, राइट, तो दिस विल बी n अपॉन 1 plus
n square plus n to the power 4. But we know that 1 plus n square plus n to the power 4 I can factorize as this factorization is must. मैं कई बार ये बार बार कोशिश करूंगा आपको देने का कि एग्जामिनेशन तक ये आपको याद रहे, right? That's it, right? You have to remember till examination this one. Yes, right? So now we are able to factorize this. This n I'm to multiply and divide by 2. So this is 1 by 2. This n I'm writing n square plus n plus 1 minus n square minus n plus 1 upon, right, both the term n square plus n plus 1 and n square minus n plus 1. Right, both the terms are going, right, cancelling out. 1 by n square minus n plus 1 minus 1 upon n square plus n plus 1. Right? Okay. So if I'll cancel out all the terms, what I'm getting? Half of first n is equal to 1. 1 minus 1 is 1 minus 1 upon the last term was 50. Right? So 50 into 51 plus 1. Right? 50 into 51 plus 1. Something like that. So 50, 51 by 2 to 1275 upon 50, 51, 155, 1550 plus 1 is something this way. This is the answer for third. Yes. How many of you got this one, the third one? A simple one, third one. Aryan, very good. Sanjana, very good. Utkarsh, very good. Receive, judge, all very good, very good. Wow, wow, very good. Very good, Utkarsh. Okay. This is like Sophie German when you are getting the power of n to the power 4 plus n square plus 1 or something like that. No, simple question, only you have to just apply the Sophie German, right? Now, the fourth one, again, fourth is again the simple सर question. इसका -17 था. अरे वाह, very good. सर वो सारे वेरिएबल टर्म्स को सेपरेट कर लो फिर कांस्टेंट को करते हो. हाँ सर, इसको बस नेगेट करना था और फिर कांस्टेंट को बस जोड़ा. और मालूम की पावर और थी तो पहले p ऑफ नेगेटिव x और p ऑफ x के टर्म्स में रिलेशन बना दिया. Very good, very good. P of -7 is a minus 7 to the power 7 plus b minus 7 to the power 3 plus c minus 7 minus 5. Right? Okay. And P of -7 is given as 7. Right? That means -7 to the power 7a plus -7 cube b 7 is plus a -7 is 7 equal to to the power 12. 7 plus b 7 to the power 3 plus c 7. Right, that I have to find, and this value That is -12. so minus of I'm getting, so this is minus of 12 and this And then subtract a further 5, so it's -17. minus of 5, so minus 7 minus 5 minus 5 is minus of 70. A direct question, right? Wow. Yes. Good everyone. So almost right, everyone is getting again. Wow, very good. Right? Fourth. Then the fifth one. It's B option, sir. Fifth is a question, like obviously. Sir, fifth में B option होगा. The only root that is there is 2. 2. See. Very good, Aryan. क्या किया बेटा, कैसे सॉल्व किया? सर तो मैंने क्या किया, 1 मिनट वर्किंग. हाँ, मिल गया. इसमें पहले मैंने गिवन इक्वेशन को जो था x को, फिर मुझे क्यूबिक इक्वेशन मिला, फिर 13x³ + 3x² - 46x - 24 = 0.
फिर हम्म। उसके बाद ट्रायल एरर से 2 निकाला, फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बाकी रहा उसका रूट चेक करने के लिए जनरल एक्सप्रेशन यूज किया, लेकिन उसमें कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा था, सो ओनली वन रूट वाज देयर, दैट वाज ट्रू। Okay. Very straightforward. Yes, yes, Sanjana, very straightforward question. Right? Added one both side because not bad. Why so? सर फिर वो 1+1/2 +1/3 +1/4 हो जाएगा। Uh, this 13 by 12, what we can write this? Sir, 1/2 plus 1/3 plus 1/4. Can I write 13 by 12 by this one? Can you see this? So this is nothing but 12, right? 4, 6, 3. Wow, this is working. That's it. This was the question. That's it. Sir, I did something different. Yeah. सर x और x plus 2 का GCD मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो Okay. अगर x और x plus 2 का GCD 2 है, देन x into x plus 1 into x plus 4 की वैल्यू 24 जा सकती है मैक्सिमम। Mhm. उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अगर उन दोनों का GCD 1 है तो फिर 12 हो सकती है। 12 के लिए कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं थे, बट 24 के लिए मिल गया। See, what you have to do now, first split this one, right? And now what you can say, 1 by x minus 1 by 2 plus 1 by x plus 1 minus 1 by 3 plus 1 by x plus 2 minus 1 by 4 is equal to 0. Now you are getting your answer. Sir, Yeah. but sir, मैंने एक और मेथड लगाया। ठीक है बेटा, जो भी like see you have to understand कि like why I'm applying this. So from each and every number I'm getting a factor of x minus 2. And all the other numbers are for the positive number that will be positive. So x is equal to 2 is the solution of this. तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिविटी सिर्फ एक होगा ना? हाँ, मतलब क्या दिक्कत क्या हुई थी? नहीं सर, परेशानी नहीं, श्योर, आंसर 1 ही आ रहा था। ठीक, ओके ओके एवरीवन, नाउ तो इसका -1, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट दिस इज गुड वन, गुड क्वेश्चन। सर इसमें बस हम लोग को 2/y और 3/z को राइट हैंड में लेना था, 6/y और 5/z को भी राइट हैंड साइड में, दोनों को इक्वल करना है, फिर y और z पर रिलेशन मिल जाएगा, उससे हम x और z पर रिलेशन डाल सकते हैं और x और y का रिलेशन डाल सकते हैं। सर उसको बस -1 आएगा लास्ट में। हाँ सर, -1 आ रहा -1, था सब डाल डाल के। हाँ सर -1, So I have to solve this or okay everyone? सर हो सर गया। इट्स फाइन। Yes, okay. हो गया सर। Sure. Good, very good. Now, so again I have given the same question, question number 7. So this time 275/32। I hope कि इस बार 7th में, right, everyone is getting the marks, right? Just I have to write down the answer of this. Right? So this number will be 275/32, I guess, something like this. यस Very good. Very good. Aryan, very good. Kisif, very good. Tanay, very good. Sanjana, very good. Very good, everyone. Right? Good. 7. Question number 8 and 9. 8 सर again. 8 वाला अच्छा था। 8 सर 8 बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 192, हाँ सर 192 है उसका आंसर। फॉरवर्ड है बेटा, भी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है वो अच्छे से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। राइट, क्वेश्चन नंबर 10। सर दिखता है थोड़ा डिफिकल्ट, बट लेकिन अगर हम ना, लोग को ना, पता चल जाता है कि हाँ। पेयरिंग कर सकते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, तो Right. उसका आंसर 192 है। A, right, you have to pair up this numbers like 3a square minus with a b if I am taking to 18ab. सर Right, एक जगह 3 को कॉमन लेना, दूसरी जगह 5 को। very good beta. Plus 5c square minus 30c. Right.
plus this will be, right, the rest of the number is 45 plus 45 to 72 is 5 to 92, 192, right? तो लास्ट में 192 बचेगा तो क्या हाँ, आंसर क्योंकि वो दोनों जीरो हो सकते हैं 3 times a minus, right, 3b the whole square plus 5 times c minus -3 the square. plus 190. So the square will be 0, this will be 0. So only the number 192 you are getting. Right? So again, Yes, sir. a simple question, right? And obviously, very less chance to get this question, right? But इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहेंगे बेटा, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर था ए। अभी करते हैं बेटा, नो वरी। क्वेश्चन नंबर 9 see this is again a simple question, but just we have to manage this thing. Dividing by x, I'm getting x plus 1 by x plus 3 is equal to a. Reciprocal of this, to x plus 1 by x is equal to 1 by a minus 3. That's it. Over. Right? So x plus 1 by x is this one. And now I can rewrite this as the question as 1 upon x square plus 1 by x square plus 2 plus 1. And this is nothing but 1 upon x plus 1 by x the whole square plus 1. X plus 1 by x is the number here. 1 minus 1 upon 1 minus 3a by a the whole square plus 1. So this is a square upon 9 plus 1, 10 a square minus 6a plus 1. Okay? सर इसका लेकिन आंसर मेरा ए आ रहा है। Okay? यस सर। Yes, sir. Right? Now the questions are starting. Now 9 तक intentionally I have given the question कि एक बार सभी को comfortable हो और questions के answer आए. सर Now 10th भी इजी था, easy बस तो नहीं पेयरिंग वापस बोलूंगा करना बेटा. था। हाँ, मतलब कितने लोगों का 10th हुआ? How many of you have done the 10th one? Write down the answer. Write down the answer. Okay, everyone. Very good. See. So this is obviously not very tough question, but what trick I have to do to just get the answer in very less steps or something. सर इसका -51 था ना। Up now this number y square plus 3y plus 6 is a factor of y to the power 4 6y cube plus my square plus ny plus 36. Right. So we have lot many methods. बहुत सारे different methods हैं. So please, I'll request everyone what you have done. Just you have to tell. आप लोगों ने क्या क्या किया है थोड़ा आप लोगों से मैं सुनूं. सर मैं बता दूं क्या अपना? चलो एक एक करके शुरू कर लें. ओके सर, तो मैं पहले शुरू कर सकता हूँ क्या? Please go ahead. Okay, so given y square plus 3y plus 6 is a factor of the polynomial y to the power 4 minus 6y cube plus my square plus ny plus 36. पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग का y4 है ना, उसको हम लोग एक क्लब कर सकते हैं y to the power 4 plus 3y cube plus 6y square. फिर बाकी जो 9 minus 9y cube plus n minus 6y square plus ny plus 36. फिर उसके बाद since y to the power 4 plus 3y cube plus 6y square is a factor, so we can remove it as we do not need it further. फिर हम लोग इसको रिपीट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कि m plus 21y square plus n plus 54y plus 36 is equal to 6y square plus 18y plus 36. तो इसमें आ जाएगा m plus 21 is 6 and n plus. You are doing long division method, right? Simple Sir, may I? method है. हाँ, yes, please.
सर हमें पावर देख के समझ आ रहा है कि एक और क्वाड्रेटिक से ही मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y to the power 4 जो भी दिया हुआ है इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस ay प्लस b। उसके बाद मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके 3 इक्वेशंस आएंगी, 2 अननोन्स है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। Very good, Sanjana. Wow. Very good. You've done the complete method. Very good, Rishabh. Very good, beta. Right. So lot many methods are there. Right. Very good, everyone. Right. That's true. Ki if you are saying ki number is y square plus 3y plus 6, right? By the long division method, one of the method you can get. Or we know that ki the power is given as 6. So just as Rishabh said, ki like we can take any of this. When multiplying both, then we have to get y to the power 4, 6y cube, my square plus ny plus 36. If you will see this, y to the power 4 is same. Y cube. The coefficient of y cube is coming as, y cube will come as when y will be multiplied with y square, that is 3. Y will be multiplied with y square, that is a, right? Okay. And in this is 6. First, you are getting value. Directly, you are getting the value of a. Right? -9. Similarly, coefficient of y square, I'll get coefficient of y square as b, right? Plus 3a plus 6 is equal to, compare with this, m, right? Value of a is there, so I'll get m in terms of b, right? Coefficient of y, again, this is 3b. I hope everyone is understanding मैं क्या कर रहा हूँ. 6a. I'm multiplying both this, but not multiplying, just I'm going with the coefficients of each and every numbers. This is n, and the constant 6b is equal to 36. Okay. So from this, I'll get b is equal to 6. Put the value of b, so you are getting everything is there now. So this 15 and 6, so m you are getting as -15, and n 3 and 6, 15. -36. So n is you are getting as -36. So what we have to find? M plus n. -50. Okay, whatever. Please note down, everyone. Note down, note down, note down. So just I'm saying you have to go with the simplest method. Okay, what we can do with that, right? Okay, the next one. This is question like this type of questions are really right tricky. सर इसका 50 था ना. What beta? सर इसका आंसर 50 है. अभी देखता हूं. Right? x1 or xi, that's all is given less than 1. Right? I is the numbers given. And mod of this is equal to 49 plus mod of the number. Right? So can we say that this number, the modulus of something is always positive number. If number is positive, so minimum value of mod of x1 plus mod of x2 up to mod of xn is minimum, right? Minimum value of this could be always greater than this number. So maybe this is 49 if all the numbers are 0, or this will be 49. Right?
So all the numbers are coming into this, right? And this number must be less than, if each and every values I'm taking as, right, it's given ki xi is less than 1, right? So this number must be less than n also, right? So the lower and upper bound is fixed, right? Lower bound and upper bound is fixed, right? And I can say ki if I have to, right, minimize this, right? So if I have to minimize this, we know that if odd number of terms are there, so it's not always possible to cancel out the terms. So I'm saying like it will be canceling out each other, right? In this case, the canceling out each other, each and every numbers are same and alternatively canceling out each other. So half of the number, right, x1, x2, x3, and half of the number is positive with the same quantity, right? Half of the numbers are negative with the same quantity. So we can cancel out both, so we are getting answer 0. So that will be possible. That must be greater than 49 and less than n is possible for n is equal to what? 50. Very good, Aryan. बहुत अच्छे. क्या same approach or some different beta? The same approach. फिर से सर So- आपने एक बार दिया था क्वेश्चन. हाँ याद है उत्कर्ष. वेरी गुड, वेरी गुड. ये मैंने पहले दिया था. सर एग्जाम के वक्त याद आता तो अच्छा रहता. अच्छा अभी याद आ रहा है तेरे सर को? अगर ये टेस्ट एग्जाम में रहता तो बिल्कुल सिलेक्ट हो जाता. आएंगे बेटा. जब तक एग्जाम आपका है, इतने सारे वेरिएशन कर चुके होंगे ना कि मैं नया नहीं लगने दूंगा आपको एग्जाम, इतना तो श्योर है. कोई भी एग्जाम के पहले हमारी प्रैक्टिस. हाँ, शुरुआत है थोड़े सिंपल पे हम जा रहे हैं, ये भी मैं बता दूं. अभी इनको लेके अपना कोई सर भी ये थोड़ा सा लंबा आंसर आ रहा सर है. 2007 है ना इसका? हाँ, कोई भी परसेप्शन अपने अभी से मत बनाना आप लोग ना, क्योंकि ये पेपर में कुछ क्वेश्चंस हमें इजी भी रखने हैं. सर इट इज -3 to the power 2007 plus 8028. Given that the real number a, b, c are not all non-zero, right? Find value of this where x is equal to mod a by b plus c, mod b by a plus c, mod c by, right? So I hope this is. तो मुझे इसके लाइक 3-4 सर ये आंसर. -3 2 और 1 करके कर दिया. माइनस तो उसके पावर कैसे निकाला बेटा? अच्छा नीचे तो रखने मैंने a को 1 लिया, b को 1 लिया, c को -2. 1 हाँ, सर. सर वैसे नहीं उसमें तो होगा नहीं आएगा सर. ना, तीनों का सम तो 0 नहीं होगा उसमें. सर होगा ना 1 + 1 - 2. -2 लिया. ओके, आई सर हर्ड. एक आ जाएगा -3 -1 1 और 3. सर इसके दो आंसर्स आएंगे ना? क्या क्या आंसर आ रहे हैं? 4013 और 3 to the power 2007 minus 2007 into 3 plus 2007. देखता हूँ, राइट. तो मेरे पास गिवन है a plus b plus c is equal to 0. तो b plus c is equal to -a and a plus c is equal to -b and a plus b is equal to -c. These three options are we have, right? अब ये तीन ऑप्शन में b plus c की वैल्यू को अगर मैं -a रख दूं तो दिस इज mod a by -a plus mod b by -b minus mod c by -c, राइट? ये तीन तो मेरे पास ये आ ही रहे हैं. एंड mod a by a, mod b by b, mod c by c. ये तीनों a b c तीनों एक साथ सेम साइन के नहीं हो सकते, इतना तो फॉर श्योर है. यस सर. Right? सो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव. केस फर्स्ट है कि दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है. इसमें भी अलग अलग केसेस बनेंगे. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट? केस सेकंड हो सकता है कि दो नेगेटिव एक पॉजिटिव. पॉजिटिव, राइट? दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव. ये दो केसेस हो सकते हैं. मतलब 6 वैल्यूज आएंगे इसके. नहीं बेटा 6 नहीं आएंगे, वो सब अपने आप चला जाएगा, अच्छा. right? So if I'm taking as positive, so what I'm getting -1, -1 and +1, right? So this value will be -1. Second case again -1, third case again. So for all these value I'm getting -1.
इस पे भी चेक कर लें क्या? नेगेटिव नेगेटिव 1 1 एंड 1। एबीसी के बारे में कुछ गिवन है मेरे को? एबीसी A plus B plus सर C zero है। सिर्फ नॉन जीरो। तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं बेटा। एक आंसर तो आ रहा है -1 रखने पर, -1 रखने आंसर आ रहा है पर आई एम गेटिंग -1 रखने पर आई एम गेटिंग -1 + 2007 + 2007 14 401 4030। 30। एंड सेकंड वाला थोड़ा सा वो 3 के पावर वाला है, राइट? तो हाँ, यू कैन पुट द वैल्यूज, राइट? एग्जामिनेशन के लिए दीज ऑल थिंग्स आर वैलिड ना, उसमें मैं मना ही नहीं कर रहा, राइट? लेकिन उसमें ये छूटने के हमेशा चांस रहेंगे बिकॉज यू आर पुटिंग वन ऑफ द वैल्यू, राइट? मे बी वन ऑप्शन हमारे आ भी जाए सेकंड ऑप्शन के लिए, राइट? यू विल फील प्रॉब्लम कि वहां पर से प्रॉब्लम हो गया। अब तो एक जो इंटीजर वैल्यू 100 से कम आ रहा है उसको ही ले लो। हाँ, क्या क्या क्या? जो इंटीजर वैल्यू 100 से कम आ रहा है उसको ही ले नहीं, लो। आपने अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है मतलब ध्यान से आप देख लो 2 डिजिट और नहीं वो। मतलब असली एग्जाम में बोल रहा हूँ। हाँ इस बार मैंने हटा दिया था वो तो कंडीशन। इसके दो आंसर्स आ रहे हैं ना? हाँ बेटा। ठीक है। ना, आप लोगों का फेवरेट सबसे प्यारा सा, राइट? इन a triangle ABC and ABD are isosceles with AB, AC and BD, and AC intersect BD at E. If AC is perpendicular to BD, then angle C plus angle D, right? So we have all the option, right? आओ देखते हैं। So let's first, the first thing we always know कि we have to draw a beautiful diagram. A, B, C, and D, and this is 90 degree, right? This is the point E, right? AB, right, is equal to AC, right? So both the angles are equal, and BD, right? All are equal, right? So can I say this is 90, right? This and this, both are equal, right? So let this angle is alpha. So angle C is, right, both the angles are same. So directly I can say 90 degree minus alpha by 2. First, right? Similarly, if you see this, right, DBAC, this is equal to this one. This angle and this angle, both are same. Let this angle is beta. Angle D is nothing but 90 minus, can I say this, beta by 2? Right? These two, khatam. That's it. Angle C plus angle D is 90 degree plus 90 degree minus alpha plus beta by 2. What is the value of alpha plus beta? Alpha plus beta by 2. Alpha plus beta is 90, so alpha plus beta Very by good. 2 is 180 135. So answer should be minus 135. 45 degree, 135 degree. One of the simplest questions. Just a basic, right? Only you have to draw the diagram and just you have to go for. Oh, oh. Done, everyone?
जस्ट नोट डाउन। कोशिश यही रखनी है कि बार बार जितने क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं ज्योमेट्री वाले, उसको रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। हो सकता है एक बार नहीं हो, दो बार नहीं हो, इट्स ओके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिस है, राइट? ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस करते 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 एक दिन आएगा व्हेन यू फील कि ओके आई नो दिस, राइट? बट वहां तक पहुंचने के लिए सिंपल है कि हमें रोज 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 करते जाने, राइट? बहुत इरिटेशन होगा, नहीं हो रही, क्या लग रहा है, बट वो इंजॉय करना तभी हम शुरू करेंगे जब बार बार वी आर गोइंग थ्रू दैट क्वेश्चन। और इतनी बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से हो सकता है, बस उसे सोचने की जरूरत है। वी हैव टू सिट फॉर दैट। आराम से बैठे नहीं, हमें लाइक आई हैव टाइम और मेरे को सोचना है एंड खूब सारे टाइम देने हैं, बस। डेफिनेटली वी लाइक, समझ लो हम लोग बहुत सारे वर्किंग करने हैं। आपको सबसे बड़े मार्क्स कोई देगा, यही है जो देगा। सबसे बड़ा हम लोग गेम चेंजर रहेंगे और हमारे पास इनफ टाइम है अभी जिसमें हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सके, राइट? मैं लाइक एज आई सेड कि दिस सैटरडे, राइट, आई एम प्लानिंग कि सैटरडे को मैं एक बड़ा सेशन लूं जिसमें मैं सेवाज, मेनलॉज एंड उसी पर पूरा काम करके दिखाऊं। जितने एरिया बेस वाले जितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं मैंने पूरा का तैयार रखा है। नेक्स्ट एक रखूंगा सेशन जिसमें मैं केवल और केवल साइक्लिसिटी पे काम करूंगा कि कितने साइक्लिसिटी से हम लोग वर्क कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? एक एक करके छोटे छोटे पोर्शन को पकड़ूंगा। हमें मार्क्स चाहिए और मार्क्स मिलना मतलब रियली इतना आसान नहीं होता, राइट? तो वहां तक हमें अपने को पुश करके पहुंचाना ही है। नहीं, हमें चाहिए, मीन्स चाहिए। और वो अवेयरनेस आप पे नहीं रहेगा ना तो नहीं मिलेगा, राइट? नहीं होते, इट्स ओके। मतलब किसी को भी कंफर्टेबल नहीं लगता, यही तो अच्छी बात है कि किसी को कंफर्टेबल नहीं लगता, इट्स गुड। तो मुझे लगता है वेरी गुड। सबसे ज्यादा। और इंजॉय भी करता है ना, यू एंजॉय लॉट ना? यस। हाँ, दैट्स द रीजन सी। वो सबसे पहला बेसिक है, यू हैव टू एंजॉय। तो इस क्वेश्चन में आपने हिंट भी दे दिया है। हाँ, हिंट भी दे एक दिया था इंस्ट्रक्शन कि दे दिया क्यों। हाँ, वेरी गुड सन। ये हिंट भी दे दिया था कि कहीं से आप अप्लाई तो करें एंड कुछ ना कुछ पुश करें। मेरे को मन था इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी, लाइक जो ये वाला क्वेश्चन था ना इसके बाद, उसमें भी मेरे को था कि जस्ट आई हैव टू गो फॉर द डायग्राम एक देके, लाइक यू विल फील कि कैसे जाने हैं। बट आई एज सोन इन फिगर, राइट? ABCD स्क्वायर गिवन है, P इज एनी पॉइंट। ये एक ऐसा जगह होता है ना, ये जो पोर्शन है ये रोटेशन का काम करता है। और ये रोटेशन बहुत प्यारे तरीके से काम करता है, बहुत ही प्यारे तरीके से कि आपने एक फिगर दिया हुआ है, उसको जस्ट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया एंड उसी फिगर को दूसरी जगह पर रिप्लिकेट कर दिया, राइट? सो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि PA PB PC 1:2:3 है, और जनरलिटी मान लेता हूँ X 2X एंड 3X है, या 1 1 2 3 मान लेता हूँ, एक ही बात है, राइट? सो हमारे पास अब इसी को मैं रोटेट करवा के, राइट, यही जो नंबर है इसमें मैं चाहता क्या हूं करना, तो जो हमारा पूरा का पूरा नंबर है ये P जो है वो चला जा रहा है Q को, राइट? A जो है वो चला जा रहा है C को, और B जैसे था वैसे का वैसा ही है। देखो तो दिख रहा है, यस। राइट? वही फिगर यहाँ की जगह ऊपर बन गया। नहीं, दोनों फिगर उसी तरह से जा रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि ये फिगर और ये वाली फिगर जब दोनों सेम है तो दोनों के लेंथ भी सेम होंगे, राइट? दोनों के लेंथ भी सेम हो रहे हैं। तो अगर मैं ए, राइट, जो दोनों हमारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं उस पर काम करें, पहले ये देखो सब। तो APB को रोटेट करके BCQ कर लिया, जहां A का पॉइंट को C पर ले जा रहे हैं, P का पॉइंट को आई एम जस्ट टेकिंग इनटू Q, राइट? दोनों हमारे पास वर्क कर रहे हैं, राइट? राइट? तो ट्रायंगल BPQ,
अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं BPQ, व्हाट वी कैन से, तो ये वाली जो BP जो साइड थी, राइट, वही मेरी साइड जो है वो BQ की तरफ वहां पर चली जा रही है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मेरे पास बन ही रहा है? Yes, sir. Yes, Right. sir, because BP is equal to BQ. हाँ, और जितना पोर्शन, जितना एंगल मैंने यहां लिया उतना ही एंगल यहां पर लिया, मतलब ये बीच वाली एंगल तो फिर से 90 ही होगी। ये भी सही है, ये राइट एंगल बनना चाहिए। अब राइट एंगल अगर बन गया तो PQ स्क्वायर जो है, राइट, PQ स्क्वायर आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, राइट। दिस इज नथिंग बट 2BP स्क्वायर या PB स्क्वायर जो हमारे पास है, राइट। एंड PB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मैं अगर 2 लेके चल रहा हूँ, PB मेरे पास गिवन है 2, 1 2 3 ही मैं अज्यूम करके चला हूँ, या 2x ले लो, 2 into 4x स्क्वायर, या x नहीं लेता, without losing the generality I'm doing this one, right? And what is value of CQ squared? CQ is coming from PA, and PA was 1, right? So what is this PC square? PC square, We take it 3. right? So PC square is 9 only, right? And PC square is nothing but what? 8 plus 1 9, वो भी दिखाई दे रहा है मेरे को, right? तो this is CQ square plus PQ square, right? Means angle CQ, right, P will be 90 degree. Okay. वही रोटेट करके जो मैं ले गया, right? Now what I have to find? So that means हम लोग का APB 135 होगा, because हम लोग का PQB 45 है और 5 CQB हो गए 90 दोनों, है। तो राइट, तो एंगल CQB होगा, दैट्स 90 प्लस 45। टाइम के कमी से अटेम्प्ट नहीं हो पाया कितना सिंपल क्वेश्चन। अब सर, रिग्रेट हो रहा है, टाइम कमी के वजह से अटेंड नहीं हो पाया। हाँ, 5 मार्कर्स पर यू कैन यूज द सिमिलरिटी इन दिस APB, और ये वाले जो है ना BCQ वाले में यू कैन यूज द सिमिलरिटी, right? How many of you get this one? 135. मिल सकता था, अगर और 5 मिनट होता क्लॉक में तो मिल सकता था। Right? 15. सर 15 इजी था। हाँ, तो 15 4 है। यस सर 4 है, स्पाइरल जैसे थी। हाँ, हाँ सर। ये अनथ के लिए यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, राइट, मतलब 2 3 4 टेस्ट के बाद में यू गेट फॉर अनथ, राइट। अभी जो हम लोग छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वही बढ़ते 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 वो अनथ के लिए चला जाएगा। वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा ना रूट 2 का। हाँ, यस सर, तो रूट 2 का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करके जब भी हम लोग को OF और OA मिल जाएगा, तो हाफ भी साइन सी करके हम लोग ये निकाल चलता है, एंगल भी निकाल सकते हैं कि ये सब 45 है तो हाँ, 360 तो इससे माइनस हाफ भी साइन सी 135 साइन 135 हाफ इंटू नहीं OF इंटू OA। एक ये चलता है, और दूसरा होता है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, जिसको हम लोग को एकदम अलग से लाइक स्टडी करना पड़ेगा। फ्रैक्टल भी इसी तरह के शेप बनते जाते हैं, और वो धीरे 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 सिमिलर फेस हमारे आगे बढ़ते जाते हैं। सर एक वो क्वेश्चन था ना कि एक कुछ ट्रायंगल था, उस पे मल्टीपल ट्रायंगल्स बन रहे थे, एक बार टेस्ट में आया था। चाइना ओलंपियाड, पता नहीं टेस्ट में आया था। हाँ, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ चाइना। आई थिंक उसको रिकर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वो चाइना ओलंपियाड का AN is equal to AN minus 1 multiplied by 1985 चाइना ओलंपियाड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, राइट। अब बहुत अच्छा उसका 1 - 3/4 टू द पावर n का वो एक GP के साथ में सीरीज बनता है, बहुत प्यारी क्वेश्चन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। सो
the diagram shown hexagon. ये this is done everyone. Sir. Yes, sir. संजना, this okay? मैं डिस्कस करूं इसे? 15, yes. हाँ? 15, हाँ. Anyone required this 15? No, sir. No? Okay, everyone? See, question number 16. In a square ABCD, E is the midpoint, right? This is the midpoint of AD, BD and CF intersect at F, right? ये क्वेश्चन को आप बहुत डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, right? This is one of the simplest question, right? तो ये मैंने जानबूझ के दिया था कि जस्ट यू हैव टू प्रूव दिस कि एक बार ज्योमेट्री में देखे तो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? आई डोंट नो कितने लोगों के ये प्रूविंग हो गई थी, प्लीज राइट डाउन. सर टेस्ट के वक्त मैंने इसे स्किप कर दिया था. सबने अटेम्प्ट भी. लिए हैं ज्योमेट्री. इंपॉर्टेंट ये है सबने अटेम्प्ट कर लिए हैं ज्योमेट्री. यस. वेरी गुड, वेरी गुड. Yes, sir. Yes. See, so just I'm just doing this. Oh. First thing in this question is, right? So you can do this by similarity, you can do this by congruency, you can do this by geometry, you can do this by vector, you can do this by like any of the method where you feel comfortable, right? You can do this by सेवाज से भी ये हो सकते थे, right? बड़ा अच्छा यूज हो सकता था. One line is going and intersecting 3 lines, right? वहां भी बहुत अच्छा हो सकता था, right? मैं लॉज या एरिया से भी मैं कर सकता था, right? बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, but the simplest thing is E is the midpoint, G is the intersection of AF and B, right? So this angle, right, and this angle, right, दोनों सेम है ही है, right? And what about this angle EAG and AGB? What you can say about these two, So which one? right? This and this, I'm marking this one and this. If I'll prove these two, right? Right, these two angles are same. Means what is the meaning of that? If I'm saying AEG means EA and G, this angle, right? And AG, this one, this angle. So we can find some relation between these two and this 96 angle, होता है. ABG, right? So this angle and this angle, right? I have to just see how this will work for that, right? So if you'll see, one of the triangle is this one, and the same base can be transferred this to this one, right? In the same. So just I have to go for, by symmetricity, triangle ABE. ABE, this one, and triangle DCE. What we can say about these two triangles? Both the congruent. triangles are similar. दोनों congruent है. Very good. And similarly, triangle ADF and triangle CDF. Same thing.
Yes. Oh, yes, sir. right? Both are congruent, right? So from this, what I can say, angle EAG, this one, is equals to what angle? Angle DCF or E, and this angle is same as ABE, या angle ABG, right? And if these two angles are equal, means this is perpendicular communities, So we right? can extend AF and also show it, right? You can show that, or you can just use the section formula. मैंने vectors में बताया था ना, you have taken A is origin and B, C and D, right? By the section formula also you can prove that. Okay. Yes, sir. 17. 1. 17 is again a simple question, right? तो अब मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ से आता हूं, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हियर, तो व्हाट सर अबाउट, सर इसमें से 4 5 मार्कर मेरे हुए थे। अरे यू वर सेइंग ना कि सर दिस वाज सिंपल, और क्या? सर ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन सिंपल था तो 4 5 हाँ 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 मार्कर। हाँ, सर 2-3 5 मार्कर तो हो गए थे। दो तीन सर 4 हुए थे। कौन सा बेटा? 21 22 23 26। सर मेरा 26 हुआ था, 24 हुआ था और 23 हुआ था। ओके, 21, 22, 23, 24, 28. सर मैंने 21 देखा ही नहीं। ओ सिंपल थे वो, बेस नंबर मैंने दिया था। सर सबसे पहले यू ऑल आर सॉल्विंग, कौन सा बोलूं, सब तो अच्छे क्वेश्चन मेरे को दिए। क्वेश्चन व्हिच वन? सर 24 अच्छा था। 24, हाँ 24 was good, 24 was good, इवन 23 भी अच्छा क्वेश्चन था। सर 23 आधा ही सॉल्व हुआ, पूरा नहीं हुआ। सर 23 बहुत इजी था, हाँ, 23 सिर्फ अच्छे से देखना था। 29 हाँ, बहुत सर। प्यारा क्वेश्चन है। 29 किसी ने किया क्या? 29 29 आई थिंक मैंने अटेम्प्ट किया था। शायद हाँ सर सर, हो इसमें गया। मेरा बड़ा आंसर आया था 431 है। 516636। which one? 28 29 29 5 नहीं 431 29 का 431 है। 431 देखना पड़ेगा बेटा मेरे को। सर मेरा आया था 516637। सर क्या है आंसर 29 का? 29 is 431 I guess। फिर मैं सही है। अरे वाह, सर मेरा बहुत गलत है सर। you are not 6 simple, डिजिट नंबर आ रहा है। सर इजी था, सिर्फ वो लिखना अच्छे से था, तब आ जाता आराम से, बहुत इजी था वो। मेन सर था मुझे लगा कॉमेडी का था। पहुंचना, उस पॉइंट तक पहुंचना जो 29 है। चलो देख लेता हूँ। सर हाँ मैं ऐसे व्हाट आई डिड। हाँ 29, यस सर। अरे 29 तेरे से नहीं होगा तब तो जान ले लूंगा, बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है तेरे लिए। सर आंसर अब मेरे को बता दो क्या है, 431 है कि नहीं? हाँ प्रत्युष हो गया। सर आंसर लाइक 288 अपॉन 143 आया था। 288 अपॉन 143 कितना आ रहा है टोटल? 431 आ रहा है। हाँ 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 वाह वाह सर, वाह। आप तरीका सुनोगे आप मार दोगे मेरे को। क्या बोलो? सर मैं 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला और क्यू को भी चेंज करता गया। फिर मैं फिर सर पैटर्न मिल गया कि p+1 अपॉन q+1 बन गया। ओके, तो सर उसमें डायरेक्टली 2015 और 1000 डाल दिया, 2016 अपॉन 1001 आ गया। अच्छा तुमने 1 2 3 4 नंबर में चेक करते गए कि क्या आ रहा है, हाँ सर। और वैसे करते करते सर मैं अज्यूम करके खत्म कर दिया। नॉट बैड। तो क्या सर मैं ये वो
हाँ सर ये IOQM 23 के क्वेश्चन 18 एक जो मैंने आपसे कुछ दिन हाँ, पहले ही पूछा था हाँ। उसी टाइप का सबमिशन बना था। हाँ, इसका अभी अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा दिक्कत करते हैं ना। मेन मैंने बोला है आप लोग को, कॉम्बिनेट्रिक्स से मिले हुए क्वेश्चन जो आते हैं, जो इमरेटिव कॉम्बिनेट्रिक्स बोला जाता है, राइट, जो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट वो कॉम्बिनेट्रिक्स से इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको चैलेंज कर जाता है। एंड अगर मैं वहां पर स्कोर कर पाया तो समझो कि हमें मतलब अपने को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्लीज आप लोग इस बात पर ध्यान रखना, आप IOQM का एग्जाम इसलिए नहीं दे रहे हो कि आपका सिलेक्शन होना है, आप IOQM का एग्जाम इसलिए देने जा रहे हो कि आपको टॉप करना है। दोनों में डिफरेंस होता है, राइट, वो डिफरेंस को आपको क्रिएट करना है कि आपको टॉप करना है। माइंडसेट शुरू से तैयार करना है कि नहीं, मेरे को तो टॉप करना है, राइट। सी, so this is question 29 ना? Yes. Okay. So question 29 is saying that ki 1000 elements subset of this 1, 2, 3, 4 up to 2015, right? From each such subset, choose least element. Okay, jitne bhi hain usme least element I'm subtracting the arithmetic mean of all the, right? So how many arithmetic mean of all the, how I have to select 2000. So जो डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा दैट्स 2015 C 1000. Is this okay everyone? In like out of 2015 different article, different numbers, distinct numbers, I have to select 1000 numbers, right? 1000 articles, 1000 numbers. So 2015 C 1000, right? This will be in the denominator, right? Now see, only you have to understand the question, the language of question. वो कभी कभी ना लैंग्वेज ही इतना अजीब रहता है ना, वो मैं प्रत्युष के साथ में सॉल्व कर रहा था, वो लैंग्वेज ही ऐसा क्वेश्चन का था, वो 3 बार लग गया उसको पढ़ने में, एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। बट जैसे लैंग्वेज आता है एक बार तो उसके बाद समझ में आता है, ओके व्हाट दे आर सेइंग, राइट। सी, अब मैंने ये तो ले लिया ये मीन के लिए कि मेरे को नीचे क्या आने हैं, अब न्यूमरेटर में क्या आने हैं, तो व्हाट दे आर सेइंग, फ्रॉम ईच सबसेट चूजन द लीस्ट एलिमेंट, राइट। मान लो 1 वाले मैंने सेलेक्ट किया, अगर नंबर 1 को मैंने सेलेक्ट किया है तो 1 कितनी बार आ रहा होगा, तो 1 को अगर मैं छोड़ दूं तो टोटल नंबर मेरे पास कितने बच गए, हाउ मेनी नंबर्स आर, 2014 बचे। 2014 C 999 हो जाएगा। वेरी गुड, हाउ मेनी हाँ वी, C 999 हाँ 999 प्लस प्लस 2 times 2000 2 times, so 2013 C, obviously I'm मेरा not वही मैंने लिखा था, बस मैंने I'm निकाला not getting गलत। 1, so rest of the number are reserve, reserve, हाँ सर, ये समझा बेटा? हाँ सर समझ रहे हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली आपने भी यही किया है, राइट, बट वो न्यूमेरिकल की जगह पर, सो दीज नंबर्स वी हैव टू राइट, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑन दिस, तो 999 C 999 एंड टोटल नंबर इज 2000, तो क्या आएगा 101516 101 16, right? So right, this is the sum and the division is this number. Is this okay everyone? यस सर इतना आ गया, पर इसके बाद क्या काउंटिंग, इधर मैं stuck हो गई। हाँ, इधर सर मैं इसके इधर के बाद काउंटिंग ही नहीं आ रही थी, कैसे गिने। बात की काउंटिंग, हाँ हो सकता है वो मेरा वही उधर में ही फंसा था सर, मैं भी select उधर ही फंसा था। हाँ कुछ तो कि बट उस आइडेंटिटी में भी 1 2 ऐसे कोएफिशिएंट्स नहीं थे। 1 2 आएंगे ना कि 1 how many times 1 is coming, how many times 2 are coming, right? So now I have to tell you exactly how you are getting the answer, right? चलो ट्राई करता हूँ। See, can I write this number as 999 C 999 and 999 C 999 plus 1000 C 999 or मैं यही किया था। C 9, अरे वाह, very good, 1000 C 999 plus 1001 C 999 and the last one is 999 C 999 and it's going up to how, like 2015 था ना,
14, sorry. 2014 C99. मतलब ये बिल्कुल आए कि अब 2015 में ही आया होगा. So this is nothing but 1. And what this? The second one is? What is the form of this? 1001. What we can write the second one? This we can write 1000 C 1000. This is 1001 C 1000. This is 1002 C 1000. And the last one is nothing but 2015 C 1000. Now add all this again, these numbers. So you are getting 2016 C 1001. 1001, and the division was 2015 C 1000. So this is 2016 over 1001. I guess something like this. अब ये नंबर क्या बोल रहे थे आप लोग? कैंसिल हो रहा है? Yes sir, 2016 upon 1001 आ रहा है. 7 किससे कैंसिल? 7 से कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, 7 से कैंसिल Yes होगा. sir. हाँ सर, 288 by 143. 140. Yes, अरे वाह. Yes sir. So this was the question from like one of the famous exam. मैं एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, वहीं से प्रैक्टिस करने लगोगे आप लोग. सर नाम बता देना एग्जाम का प्लीज. सब लोग वेट कर रहे थे. हाँ सर, बोलो बोलो सर, बोलो सर. Yes, 2015 exam, but from where I'm not saying. सर गूगल सर्च करना Good पड़ेगा guy. शायद. But सर सर्च करना पड़ेगा, अब तो सवाल सर्च करना पड़ेगा. currently, right, the question, if you'll see, right, question you'll see, question number 26 was one of the simplest question, but बहुत सर ये सिंपल 2 था. मार्क का होना चाहिए था. सर ये तो 5 3 मार्कर मार्क का में भी क्यों नहीं था होना पता चाहिए नहीं. था. पता नहीं हाँ, 5 सर में एक क्यों डाला है. सर एक ट्रिक कैच था उसमें. एक बस सर जगह उसमें भी गलती एक कर कैच सकते था थे. सर, कैच था हाँ सवाल सर. में. वो सवाल अगर में कैच था. पकड़ा आपने तो you are हाँ getting. सर. If you are not, then सर right. पेंसिल से लिखना काम आया. हाँ अच्छी. हाँ सर, पेंसिल पहली बार काम आई. हाँ. So just see, in the examination, you have to pick the question, right? It's not ki like all the 30 questions you have to do. Maybe 1-2 questions are there in 5 markers, but right, due to the time pressure or due to like pressure of the examination, you are not attempting the question. The question number 27 was good, and question number 30 also. Question 30. 3030. How many of you have done the question 30? Everyone take your time for 2 to 3 minutes. Try again. Question 30. सर आप आंसर की कब भेजोगे? भेजूंगा बेटा बाद में. पहले अभी करके ना डिस्कस करते हैं. अभी है आराम से. Take your time. 34. You have 5 minutes for this question. Take your time. But use reserve. यस सर. आप लोगों से ये क्वेश्चन होना चाहिए बेटा कि किसी भी हाल में एकदम मैं बोल सकता हूं कि कभी भी आपको आपके एग्जाम में आ सकते हैं ये या इसके सिमिलर क्वेश्चन. 100% you will get in your examination. Sir, 25th. This one, 30th. Is it 30? You all are attempting this question, 30th, 3030. Take your time. 5 minutes you have. Take your time.
डन एनीवन? कोई आइडिया लगा कैसे जाना चाहूँ, क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है? सर मुझे लग रहा है 999 ही होगा क्या ले लो? सर, क्योंकि अब सारे इंटीजर्स होंगे ना, बिकॉज लाइक कोऑर्डिनेट प्लेन में ऑलरेडी सारे इंटीजर्स ही। नहीं समझा मैं क्या? सर लाइक हम लोग का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सारे इंटीजर्स ही बनने वाले हैं ना सर, तो इसमें से मुझे लगा कि लाइक कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो रेक्टेंगल लाइक हो सकता है, सो इससे मैं सोच के लाइक लग रहा है मुझे, बट लग नहीं रहा है सही। हम्म और कुछ, और कोई, और कुछ फाइल सर अच्छा? मेरे को एक पैटर्न मिला कि बस यही पैटर्न ही अपने को चाहिए, वही पैटर्न काम करेगा यहाँ पे। सर अगर 4n+1 के फॉर्म का नंबर है, जैसे 1 5, तो उसमें जो एरिया आएगा 1 से लेकर 4, जैसे पहला रेंज आएगा हम लोग का, उसमें जो एरिया होगा वो इंटीग्रल तभी आएगा जब हम लोग एक ऑड नंबर तक वैल्यू ले, जैसे 1 से लेकर 3 तक। बट 1 से लेकर 4 ले या 1 से लेकर 2 ले तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है। ओके। और अगर किसी भी इवन नंबर वाले रेंज में ले, मतलब रूट एक्स जहां इवन है, मॉडल जिफ ऑफ रूट एक्स, वहां पे हम लोग को एरिया इंटीग्रल आ रहा है, बट उस पे कुछ बना नहीं पाया सर। तो उसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे? एरिया कैसे फाउंड आउट करेंगे? हाँ सर वही वही तो कंफ्यूजन ऐसा है। करता हूँ ना, वेरी गुड क्वेश्चन, कि भाई पहले वो तो पता चले कि एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाद में देख लेंगे क्या हो रहा है ना। तो फर्स्ट वी हैव टू थिंक कि एग्जैक्टली हाउ द एरिया इज गोइंग, राइट? सो लाइक मैं पेज लेता हूँ पहले, तो यहाँ पर हम लोग कुछ वर्क कर पाए। Like this is y is equal to x, root x is in the greatest integer, something like this. ठीक है ना? Let this is the graph, right? I'm saying कि x is lying between 0 to 1, right? So what is this function now? ये function क्या होगा? When x is lying between 0 to 1, तो what is the value of under root of x? सर Root of 1 से x। 0 के रेंज में लाया करेगा। हाँ सर 1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए? सर 1 0। 0. So that this will be 0. First case. When I'm saying x is lying between 1 to 4 means 2 square. So what is y now? 1 Think? 1 y सर 1 सर। 1। Huh? नहीं 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 नहीं, वो X is होगा there. 1 से लेके 4, 1 से लेके 3 तक होगा। What is y now? What is the value of y? When x is lying between 1 to 4. 4 is not. 1 से y 1 to 3 में होगा, 1 से लेकर 3 तक। What is the function? Y और x का function क्या रहेगा? Y is equal to x only. X 2 से 1 के बीच में लाया हो सकता हूँ, right? What if x is lying between 4 to 9? 2 square to 3 square. y What is is equal to 2x, 2x? What if और फिर 3x, फिर 4x, फिर 5x, फिर 6x 9 सर। to y is equal to, this is what, 3x. Now how Yes. to find the area? Very good question. See, if I'm plotting this, right? So the plot will be between 0 to 1, this will be 0. 1 to 4, this will be y is equal to x. What is the area of this? This is 1 1 and this is 4 4. 4,4। Can you find Correct. area of this region? Area of Yes, this sir. region means this Yes, one. sir. Anyone? सर 7.5। Right? Anyone can find area of this region? सर 7.5 आ रहा है। And then
3 plus Right? 4.5, 7.5. 7.5. Are you able to understand? Now try, now go for this. Now go for. Go for the next, what is the like area you are getting and what are the values you are getting? दिख रहा है? सर मेरा आंसर सही है क्या? Sir, I've shared my answer.
डन। और इन जीरो कैसे आ सकता है बेटा एरिया? सर हर बार 0.5 ही आ रहा है। एरिया मतलब जीरो नहीं, मतलब हर मेरा बार। आंसर सही है क्या? कहाँ तक का निकाला आपने बेटा? सर फिर 16 और 25 हाँ, तक। ये तो 1000 तक जाना है ना? हाँ सर, तो मतलब लेकिन ये फिर जाएगा कहाँ 16 तक? 25 के बाद बहुत ज्यादा है। 31 पेज 31 कंज्यूम। स्क्वायर तक, 31 स्क्वायर तक जाएगा ना? सर मेरा आंसर सही है। कहाँ? हाँ कृषि आपने कहाँ तक का लिखा बेटा ये 16? यहाँ इस एरिया को सर 16 मतलब फाइनल आंसर। फाइनल मतलब जब वहां तक जाएंगे हम 1001 तक। हाँ 1001 में तो अधिक आएगा ना, क्योंकि यहाँ तक में ही इसी में इतना बड़ा एरिया आ गया। राइट, ये नंबर कितना है? ये है 1, ये नंबर कितना है 4, राइट। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3। 4+1/2 इंटू 3, ये तो इतना तो एरिया यहीं पर बन रहा है। नहीं, ये सर क्यों? 16 मतलब एरिया नहीं, मतलब नंबर ऑफ इंटीजर एरिया। हाँ हाँ, नंबर ऑफ इंटीजर्स आएंगे। हाँ लेकिन वो मेरे को तो वो भी देखना पड़ेगा ना कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो इस समय मेरे को इतना वही ही लिखा है ऊपर। सही, सही है वो ठीक लग रहा है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास कितने आएंगे? तो ये 4 से देखो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट। अब ये चेंज हो जाएगा थोड़ा, राइट। तो 2 से कहीं ऊपर जाके ये 8 से शुरू होगा एंड वो ऊपर जा रहा है यहां पर। तो बीच में हमेशा एक गैप आ रहा है, राइट। यहां पर हमेशा एक गैप आ रहा है, यहां पर ये 8 से शुरू हो रहा है, राइट, और 18 तक जा रहा है, राइट। 8 से शुरू होके वो 18 तक चला गया। 4 से 8 वाला जो गैप था वो हमारे पास ना, वो वहां पर हमारे पास इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं। फिर 18 के बाद में जहां चला गया मेरा 27 से लेके 48 तक, राइट। सो फर्स्ट वाले में मेरे पास इंटीजर आया 1 2 3, 4 तो पहुंचा नहीं था, राइट। सेकंड वाले में मेरे पास आया जब 4 से लेके मैं जा रहा हूं तब, राइट, 4 से लेके 8 तक 4 इंटीजर आए। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? तो x की वैल्यू मुझे ये पता चला, x जो मेरे पास आ रहा है वो a स्क्वायर से a+1 के होल स्क्वायर के बीच में ये हमेशा एंड मिनिमम वो होगा a स्क्वायर को लेता जा रहा है, जिसमें y मेरा जो भी है हमारा ax है, और a मैं बोल रहा हूं जो भी मेरा नंबर आ रहा था √x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाली, राइट। और एरिया क्या बन रहा है? तो अगर ध्यान से देखो तो an+1 माइनस an जो है यही मेरा एरिया दे रहा है, राइट। एंड वो कितना आ रहा है? अभी ट्रेपीजियम करके हमने निकाला, तो वो कितना आ जाएगा? a टाइम्स n+1/2, राइट। यही एरिया है मेरा जो डिफरेंस दोनों का आ रहा है, राइट। जितने भी इंटीजर है +1/2, राइट। अगर a की वैल्यू मैंने 1 डाली तब क्या क्या मिला मुझे ना? पर्ट्यूस ने जो किया था वो मतलब अप्रोच बड़ा सही था उसका। a = 2 पर हमारे पास क्या जाएगा? n कौन कौन से नंबर को बिलोंग करेगा? 4 to 9, 4 टू 4 to 8। 8 बोलो, 9 तो नहीं जाएगा ना। 4 5 6 7 8, राइट। सर बट ग्राफ बनाएंगे तो फिर वो तो 9 तक पूरा जाएगा ना, बट ओपन रहेगा ना 9 वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, लास्ट वाला तो ओपन रहता है ना। 16 तो ओपन रहेगा इसमें ना, 3 डाला यस तो। ये देखो ना यस। यहाँ पर किया ना हमने, यहाँ पर देखो लेफ्ट जो है, यहाँ लेफ्ट वाला में क्लोज इंटरवल है, राइट वाले में क्लोज थोड़ी ओपन है ना। हाँ सर। तो हमेशा वो तो एक हमारा हमेशा लेफ्ट करेगा, लेफ्ट आउट करेगा, तो a = 4 पर कहाँ चला जाएगा? 15 तो गया मेरा कहाँ से? 16 से लेके 24 तक एंड सो ऑन, राइट।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब जिसको बोला जाए कि आपको एकदम आईओक्यूएम लेवल पे क्वेश्चन था ये, जो 5 मार्कर आईओक्यूएम को होता है, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, राइट। फोर 34 नहीं 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 पहुंचा। सर से आता है कि कम? इससे थोड़ा ज्यादा है। हाँ मतलब काफी रेंज पे है, बट थोड़ा ज्यादा है इससे। हाँ, जैसे मतलब फर्स्ट वाले में मेरे पास जैसे आया था तो 3 थे, देन सेकंड वाले में मेरे पास 5 हो गए हैं, देन 9 to 18 में मेरे पास 8 हो गए हैं, देन 15 हो गए हैं, राइट। हाँ, ए इज इक्वल टू 5 में फिर यहीं से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9, और यही चीज चलता जाएगा, रिपीट करता जाएगा अपने। हाँ, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये जो हमने ऊपर में लिखा है ना, यही काम कर गया आप। क्या? ए स्क्वायर से लेके a+1 का होल स्क्वायर -1 तक, यही जा रहा है, देखो तो। राइट, और यही रिपीट करना है अपने आप में। और a की वैल्यू मैक्सिमम क्या जाएगी? मैक्सिमम जाएगी 32 के नीचे, मतलब 31 तक। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, राइट। इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट, आपके लिए। 28 कितने लोगों का हो गया था? 28 इज अगेन लाइक ऑसम अगेन। तो इसका 12 था क्या? हाँ, सर 12 था। आंसर आ गया इसका। सर Yes, 12 sir. था क्या? 72। तो 72 होना चाहिए। फिर गलत है। 72, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, आई डोंट नो, सबके अप्रोच मैं नहीं देख पाया हूं अभी, बट सर 30 का आंसर फिर से भेजा। हाँ अब ठीक लग रहा है। हाँ, तो काउंटिंग ही करनी है, सब तो हो ही गया। नहीं, वेरी गुड। सर वो मैं 4 और 7 वाले केसेस लिया ही नहीं था, तो इसलिए मेरे दो 20 और 29 में से दो। 31 तक टोटल जाने थे ना। हाँ सर। हाँ, क्या अप्रोच रहा है इस क्वेश्चन के लिए, 28 के लिए? फिर से एक्सप्लेन करोगे आप? सर मैंने सिंपली उसको सॉल्व, ABCD मान के उसको सॉल्व किया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। चार इक्वेशन, 4 अननोन यस सर। पे। उत्कर्ष ने भी वही किया। संजना? और कोई, और कोई? Tanay, have you done this? Pratyush? सर मैंने तो ग्राफ बना के ट्राई किया, तो फिर 3 डिग्री पॉलिनोमियल के 4 रूट्स आ रहे थे ग्राफ से, तो वो 4 रूट्स आ रहे थे देन। यस सर। लेकिन मॉड के कारण 4 रूट्स आ रहे होंगे ना? नहीं सर, उसको कंसिडर किया उसके बाद सर। कि 1 2 3 और फिर क्या था, 5 6 7, राइट। 4 रूट्स तो हो नहीं सकते, होंगे 3 ही रूट्स, और यही सर आपका 4 भी सबसे तो बड़ा था हिंट। ना? हाँ, ये सबसे बड़ा हिंट यही होना चाहिए। 4 पर क्या नंबर था मेरा? 4 हाँ नहीं है 4 ना? नहीं था। 1 2 अच्छा 3 5 6 7 ओके सर। ना। हाँ सर वही सर 1 2 3 और फिर 5 6 और 7 सभी के मॉड की वैल्यू गिवन है 12, राइट। एंड क्यूबिक इक्वेशन अगर मैं मान लूं कि ये, राइट, ऐसा है, तो
कैसा जाना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं? सर बट आप इतने श्योर कैसे हो कि एकदम ऐसा ही कर्व बनेगा और 3 रियल रूट ही आएंगे? 3 रियल रूट आएंगे क्योंकि क्यूबिक है। सर 3 रियल रूट ही थोड़ी हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 रूट रियल ना हो। नहीं, लेकिन दिया Not है कि 3 डिग्री है, तो दैट मीन्स 3 रियल रूट 3 होना डिग्री, चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बट डिग्री 3 विद रियल कोफिशिएंट बोला है ना, ये नहीं बोला है कि रियल रूट। वेरी गुड, बिल्कुल सही सवाल उठाया कि ये है, लेकिन फिर भी मैंने क्यों बना दिया ऐसा? सोचो, थोड़ा सा सोच के बताओ कोई। क्योंकि उसके साथ में जो रिलेशन दिया है उसको नहीं पकड़ा आपने। उसके साथ जो रिलेशन दिया है वो मेरे को क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ सभी की वैल्यूज जो है वो 12, राइट? अब ये मॉडुलस सभी की वैल्यूज 12 हो गई अगर, राइट, अगर ये पूरे की वैल्यूज मेरे पास 12 हो जा रही है तो मेरे लिए सब के सब या तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाए या सबके साथ हमारे पास नेगेटिव हो जाए या कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रहे, राइट? तो मैं वो केसेस पर जाना चाह रहा हूं यहाँ पर जहां पर ये रूट्स दे रहे हैं। और अगर रूट्स दे रहे हो तो अगर ध्यान से देखो कि F2, F3 एंड F7 पर मैं बोल सकता हूँ ये तीनों वैल्यूज जो है ये जो ऊपर दे रही है, तो F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F7 की वैल्यू 12, राइट? सिमिलरली F1, F5, F6, F1, F5, F6 ये वैल्यू जो है वो -12। लॉजिकल है ये? लॉजिकल है ये? अब मान लो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता, राइट? अब ये ऊपर उठाने पर क्या होता, मान लो आप जो बोल रहे हो मैं मान लिया, ऊपर उठाने पर क्या होता कि F1 की वैल्यू मान लो आ भी जाती -12, 2, 3 और सबकी वैल्यूज मेरे पास 12 नहीं पहुंच पाती, राइट? तो मेरे लिए तो दिक्कत की बात हो जाती, क्योंकि क्वेश्चन जो बोल रहा है वही वैलिड नहीं होता हमारे लिए। क्वेश्चन की वैलिडिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 वैल्यूज नीचे है 3 वैल्यूज ऊपर है, तब इसे काम करना चाहिए। क्या बोलते हो, सही है? हाँ सर। हाँ, अब ये लॉजिकल लग रहा है। हाँ सर, अब लॉजिक तो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास अब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैं अगर इक्वेशन भी चाहता हूं, राइट, तो मेरे पास एक इक्वेशन है, क्या कहूं कि F2, F3, F7 पर वैल्यू 12, ऐसा ले लूं क्या? इसे देखते हुए मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूं क्या, fx इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x-2, x-3, x-7 प्लस 12। क्या बोलते हो, ये पूरे के पूरे इसको सेटिस्फाई करेगा? और फिर हम लोग fx को कर सकते हैं लैम्बडा x-1, x-5, x-6 -12। में ये -12 देगा, ये तीनों वैल्यूज के लिए लैम्डा मुझे निकालना यहां से पड़ेगा, सबके लिए सेम वैल्यूज आएगी। F1 पर जो आ रहा है F5 और F6 पर भी वही वैल्यूज आएगी। दो जाएगा ना, दिक्कत ही जाएगा, एक बार लैम्डा टाइम्स लेना पड़ेगा एंड म्यू टाइम्स भी लेना पड़ेगा। सही बोल रहे हो, यहाँ तक तो आ गया सही। यहाँ आने के बाद अब सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास इक्वेशन क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस प्लस cx, cx प्लस राइट? इसके लिए 2, 3 एंड 7 पर 12 है एंड यहाँ वैल्यूज पर -12, 1, 2, 3, 4 4 अननोन है, आराम से ही निकल जाएंगे फर्स्ट 3 पे ही। लेकिन आप लोगों ने जब लिया ग्राफ को तो कैसे डिसाइड किया कि कौन सा 12 है कौन सा -12 है? बिना उसके तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। हाँ प्रत्युष, और मैंने इसको सर एक ग्राफ कांस्टेंट गलत फंक्शन बना दिया। तो यही ग्राफ बनाया था ऐसे ही क्या? नहीं सर, मैंने मैंने इसको ग्राफ कांस्टेंट गलत ड्रॉ। फंक्शन माना। मुझे ग्राफ गलत गया था। ऋषभ 72 कैसे लाया?
सर मैं तो वो इक्वेशंस थे उन्हें सॉल्व किया। इक्वेशन सॉल्व करने पे तो हमेशा प्लस माइनस आ जाएगा ना। सर बट माइनस माइनस हमारे पास ऑप्शन थोड़ी ना। हाँ, किस्मत साथ दिया, किस्मत साथ दिया। नहीं। मॉड नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती। बट सर फिर आईओक्यूएम था ना। आईओक्यूएम में तो इंटीजर आंसर्स, पॉजिटिव इंटीजर आंसर्स। ठीक है, लॉजिक भी बता दिया अपने को। ठीक है, तो इस गुड। बार लकी हो गया। नहीं ठीक है, मतलब वही तो अंडरस्टैंडिंग हम लोग को करनी है ना। ये क्वेश्चन मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अब आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 27, कितने लोगों का हुआ ये? कृषि, कैसा लगा बेटा ये वाला 27? सर पूरा सॉल्व नहीं किया था मैंने। ये क्वेश्चन प्लीज 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 आप लोग कम से कम हाफ एन आवर या 25-30 मिनट्स लगाएं इसमें। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ये ख्याल रखें। एंड अगेन 26 तो हो गया था, चलता है। 25 जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस तरह के लैंग्वेज के 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और ये ऐसा लैंग्वेज और इस तरह के लैंग्वेज हैं जो हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है, जो 25 आपको दिख रहा है। राइट। तो कम से कम 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ें। राइट, देखें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर डिस्कस करता हूँ। किसी ने अटेम्प्ट किया था 25? कोई नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।
मैं स्टार्ट करूं क्या? मैं स्टार्ट करूं? मैं शुड आई स्टार्ट? So 1 minute. Okay. आर्यन, हो गया प्लस विजय, अनुष्का, कटानी, So can you explain the question once? so the question is saying now, okay, like you have, let's suppose 5 elements, right? You have 5 elements in a set, and two types of set. Mod A is equal to mod B. The cardinal numbers are same. That's like cardinal number means मैं उसमें से 3 elements का set एक बना रहा हूँ for A and 3 element का set I am making for B. So in how many ways we can do such things for each and every element? So let's suppose 1 I'm taking as 1 सर as मैं इसका आंसर लिखूं क्या? 1 is one of the numbers. So like Sir, I've sent the answer. I don't know, but like I'll explain this now. So 1 is one of the number, so I'm taking as one of the number, and now we have to select it. Out of 5 means now out of 4 I have to select 2 numbers, right? So 4C2 for first one, and second one again 4C2, right? For like next number, right? Again you have to do the same thing, and so on, right? For n minus 1 things or something, then you have to find value of 2000 something, like the number 6 given. But the theory is saying that only mod A is equal to mod B means number of elements, right, in A and number of elements in B, right, both are equal, right? Elements are equal, right? So sizes are equal, irrespective of what you are choosing in that, right? So for that, we have to make how many possible, right, Sn are possible. It's summation of A intersection B. What is this answer for? ये क्या है? सर P by Q. P by Q means मतलब जो निकालना है मुझे वो क्या? Yes sir. बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ये तो. सर ये P/Q. क्योंकि पी क्यू दोनों तो करीब करीब सेम ही के करीब करीब आना चाहिए ना, कैंसिल होकर बहुत छोटा सा कुछ नंबर आना चाहिए, क्योंकि सर मैंने P/Q 2021 में तो दोनों कैंसिल ही होंगे और बहुत छोटा सा कोई नंबर दे रहा होगा. सर तो फिर P/Q भेजा मैंने. व्हाट आर्यन? सर मैंने P/Q भेजा. क्या किया, कुछ आइडिया दो. सर मैंने क्या किया कि मैंने लाइक सोचा कि वो जो है वो S2022 जो होगा वो summation of the summation of 2022 consecutive 2022 terms और divided by summation of 2021 terms. तो इसमें फिर
like summation of 1 plus 2 plus 1 and then 1 plus 2 1 plus 2 plus 3, तो उसका summation divided by वो, क्योंकि वो मुझे पहले लगा था तो फिर मैं सोचा कि वही डाल दूं। See, मैं बता, ये थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा टफ क्वेश्चन में जाएगा, बट फिर भी देख लेता हूँ एकदम। इसके लिए यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ विंडरमॉर्ट मेथड। याद होगा हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था विंडरमॉर्ट मेथड, याद है ये विंडरमॉर्ट बताया था कि NCR इंटू NCR या MCR जो भी बोलूं का समेशन क्या आता है, ये R इज इक्वल टू 0 to M। वेरी फेमस रिजल्ट क्या, NC0 square plus NC1 square plus NC2 square up to NCN square. What is the answer for? What is the answer of this? नहीं याद है? This is 2NCN. If I'm saying MCI into NC n minus I, the summation, right? Or some K minus I. Summation. The formula is M plus N CK. क्या हो रहा है ना, सिंपल सा, इतना कोई हाई फाई चीज नहीं है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन द सिंपल वे। लेट देयर आर टू टीम्स, राइट? टीम ए एंड टीम बी, मैं ए बी नाम करके ही देता हूँ, राइट? टोटल आई हैव टू सेलेक्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज के फ्रॉम बोथ दिस। इसमें मेरे पास m एलिमेंट्स है, इसमें मेरे पास n एलिमेंट्स है, राइट? एंड आई हैव टू सेलेक्ट k फ्रॉम ऑल दिस, राइट? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? इससे 0 कर लूं, इससे k करूं, इससे 1 करूं, इससे k माइनस 1 करूं, इससे 2 करूं, इससे k माइनस 2 करूं, राइट? इससे 0 सॉरी इससे k करूं और इससे 0 करूं। These are the possibilities, right? Or what I can say, this is MC0 into NCK plus MC1 into NCK minus 1 up to MCK NC0. Is this okay? Or I'm saying that this is nothing but MCI NCK minus I varies from 0 to K. So what answer I am getting? तो मैं क्या बोलूं, ये क्लियर है सबको? Is this okay everyone? Yes. ये सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों इतना मैं मतलब इस तरह का काम कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं ऐसा करूं, लाइक मैं दोनों को एक अज्यूम कर लूं, राइट? तो हाउ मेनी आइटम्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव नाउ? M plus N, एंड उस M plus N में मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? कि दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। लॉजिकल है नहीं? Double counting. हाँ, मतलब मैं क्यों एक उधर काउंटिंग कर सकता हूँ, इट्स ओके, मैं ये भी तो काउंटिंग कर सकता हूँ, एंड दिस इज रिलेटिवली वेरी सिंपल, राइट? तो M plus N CK, दिस इज काउंट, राइट? सो what we can say कि if I'm taking all the articles like what it is given in this, कि mod A is equal to mod B, right? 5 is the element coming, 1 is the element coming. So if one of this is coming as CA and second is coming as CB, and this number, right, this number, the length L is varying from 0 to n minus 1, right? So can I say this, what we have to select, right, for L is equal to 0 to n minus 1, n minus 1 CL, n minus 1 CL. And this is nothing but 2n minus 2 C n minus 1, right? The minimum it's going to this number. Each and every number is doing this, so 2 into 2n minus 2 C n minus 1. This is your answer, right? अब जो बैठाने आपको बैठा लो, 2, 3, 4, 5 जो भी बैठाने नंबर्स, क्वेश्चन बस इतना सा है एंड लॉजिक आपका यहाँ पे है. You can relate this now, right? From one article you are selecting L, from second article, and total you have to select n minus 1. So just we are going from 0 to n minus 1 articles, so to n minus 2 C n minus 1.
ओके ओके एवरीवन। सो लाइक Yes. 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं फिर से इसको आपको हाईलाइट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 27, एक ये आई होप 20th सबसे हो गया होगा। लास्ट 2-3 बार से हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसमें दिक्कत Yes. नहीं होगी। एंड 19 भी, राइट, ये दोनों। एंड क्वेश्चन नंबर 24 सर कितने लोग 19 में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, हमको ई और एफ के बारे में नहीं सर पता। बोला है एक्चुअली 19 और 18 रिलेटेड क्वेश्चंस है, अगर 18 सॉल्व नहीं हो तभी 19 कर सकते। हाँ, उनका फिगर सेम है, दोनों सेम। दोनों रिलेटेड क्वेश्चन, दोनों का फिगर ही सेम है। 19 हो ही गया होगा। 24 एंड सेकंड क्वेश्चन इज 27। So 24 का आंसर 150 है। हाँ सर, 24 का 150 आ रहा है। सर 37 है। हाँ, सो 150 आ रहा है। 24 का, हाँ सर 24 का 150 आ रहा था। यस 150 आ रहा है, सही है। एंड तब मेरे ख्याल से ये सबका हो गया है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को बच रहे हैं जो है 27, 10 सेट। ये क्वेश्चन आप लोगों को करके, राइट, मेरे को जितना जल्दी हो सेंड कर दें। मैं सॉल्यूशन अब आपको दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है? ओके। सो यस सर। पेवाज हम लोग करने जा रहे हैं एंड कम्बिनेट्रिक्स के हम लोग वर्किंग जो है उसमें एमुलेट कम्बिनेट्रिक्स जो मैंने बोला था वो, ये दो चीजों को हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्लीज, हाँ, कोशिश यही रहे कि हम लोग इन दोनों को बेस्ट तरीके से यूज कर पाए, ठीक है? यस सर। ओके, राइट। सो एंड होपफुली ये वाले टेस्ट पिछले वाले से बेटर रहा है ना, बट यस नेक्स्ट सर। वाला थोड़ा सा इससे मैं ऊपर रखूंगा। सो नाउ आप लोग का एक वार्म अप हो गया है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाले टेस्ट के लिए यू हैव टू प्रिपेयर। हाँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि संडे को मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं आप लोगों का जो कॉपी है उसके साथ में आप लोगों से मुलाकात कर लूँ। तो अगर पॉसिबल हो तो आप टेस्ट का जो डे है वो संडे के अलावा किसी और दिन कर लेना, या कुछ लोग संडे कर लो, उसके बाद मैं आपका पीटीएम मंडे या ट्यूसडे किसी एक दिन कर लूं, क्योंकि मेरे को हाफ एन आवर हर एक इंडिविजुअल के साथ चाहिए होगा। तो आप जहां पर भी मैं एक बार डाल देता हूं, जहां जहां जो भी कंफर्टेबल है आप बता देना, उसी हिसाब से मैं आप लोगों का टाइम सेट कर दूंगा। चलेगा? यस सर। राइट। सर संडे को मैं और प्रत्युष नहीं रह पाएंगे। संडे को कहाँ जा रहे हो आप लोग? सर एमटी है। मेजर टेस्ट।